Hi friends, in today's class we'll start with Faraday's law. There are two laws of Faraday, first law of Faraday and second law of Faraday. So basically what actually means by electrolysis, title है quantitative aspect of electrolysis, that is Faraday's law. Now electrolysis is all about, there is a small pictorial diagram over here to just get a clarity of this first law. Here in case there is one beaker compresses with a solution. So this beaker compresses with 1 molar of CuSO4 solution, platinum electrode dipped in it. By means of copper wire through the galvanometer or ammeter, that circuit is completed. So when you pass the electricity, CuSO4, Cu get oxidized converted into Cu plus 2 electron. So basically Cu plus 2 electron gives Cu solid. The amount of copper deposited at cathode is known as electrolysis. So कितना कॉपर कलेक्ट होगा कैथोड के ऊपर. अब डेनियल सेल भी याद कर सकते हो, डेनियल सेल के अंदर भी क्या था, CuSO4 के अंदर कॉपर का स्ट्रिप डिप्ट किया था. And when you pass the electricity, Cu plus 2 acquire some amount of electron and converted into Cu solid. So likewise, how much copper is collected at cathode, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले फैराडे ने बताया. तो कितना करंट कितने टाइम तक आप पास करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Means how much current for how long you pass, that is you get the amount of copper collected at cathode. So let's start with Faraday's first law. It states that the amount of substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity flowing through the electrolyte. कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Once again it states that the amount of substance deposited मीन्स कैथोड के ऊपर कितना अमाउंट डिपोजिट होगा और लिबरेटेड. अगर गैस होगा तो गैस लिबरेशन होता है, मीन्स बबल आउट होता है. एट इलेक्ट्रोड, दैट इज डिनोटेड बाय एम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स कितनी क्वांटिटी में आप करंट पास कर रहे हो फॉलोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. इट्स डिपेंडिंग ऑन दिस. तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नथिंग बट जेड. जेड इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट. So that Z is the constant called the electrochemical equivalent, or Z you can say that equivalent weight divided by 96,500. So the quantity of electricity is product of this current ampere I and time second t. ये जो Q है, Q क्या है? Q is nothing but Q is equal to I into T. I क्या है? करंट पास थ्रू द सर्किट. मीन्स कितना करंट इसके अंदर पास कर रहे हो. सेकेंड T क्या है? टाइम. कितने टाइम तक पास कर रहे हो. मीन्स कम करंट और कम समय पे पास कर रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी कैथोड पे मिलेगी. ज्यादा करंट लंबे समय के लिए पास करते हो तो ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी. एज सिंपल एज दैट. मीन्स Q इज नथिंग बट I into T. वंस अगेन Q क्या है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोडक्शन ऑफ दिस करंट ऑफ एम्पियर I एंड टाइम इन सेकेंड T. Q इज इक्वल टू I into T. Q की वैल्यू उठा के ऊपर रख दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू Z. Q की जगह पे T, Z I T. Now 1 Faraday is a charge of 1 mole of electron and its value is 96,500 coulombs. Basically exact value अगर आप मेजर करने जाओगे तो वो बनेगी 96,487. अप्रोक्सीमेटली करके उसको 96,500 लिया गया हुआ. For the deposition of 1 mole of N sodium, the amount of charge required, that is 1 Faraday. Means if you want to remove 1 electron you require 1 Faraday. If you want to remove 2 electron, 2 Faraday. If you want to remove 3 electron, 3 Faraday electricity चाहिए. As simple as that. अगर सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन तो कितना चाहिए, 1 Faraday इलेक्ट्रिसिटी. लाइकवाइज कैल्शियम का इक्वेशन क्या है, Ca +2 इलेक्ट्रॉन तो कितना चाहिए, 2 Faraday इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज अ सिंपल इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी. मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन निकालने उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी. मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट लॉ क्या है, सबसे पहले आपका आएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. यही वैल्यू आप उठा के ऊपर रख दोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, M इज इक्वल टू Z I T.
So this is all about your first law of Faraday. Now second law of Faraday क्या बता रहा है? Second law of Faraday states that when the same quantity of electricity is passed through the solution of the different substances, the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their chemical equivalency. इसका मतलब क्या हुआ सर? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है. लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करते हैं. सो दिस इज आवर डिस्कशन. लेट्स टेक एग्जाम्पल. आई हैव अ 3 बीकर. फाइन. फर्स्ट बीकर के अंदर है 1 मोलर AgCl. सेकेंड बीकर के अंदर भरा पड़ा हुआ है 1 मोलर MgCl2. थर्ड के अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है 1 मोलर AlCl3 का सॉल्यूशन. नाउ तीनों को सीरीज में ज्वाइंट किया हुआ है और तीनों को सीरीज में ज्वाइंट किया है तो सेम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और सेम टाइम पे. सो मैं ये तीनों के तीनों बीकर को 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 आवर दे रहा हूं. मीन्स 1 घंटे के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं तीनों बीकर के अंदर, जो कि तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ लीजिएगा. अब कौन सा केमिकल रिएक्शंस होगा वो नीचे लिखा हुआ है. देखिए, इन first beaker what happened? Ag plus 1 electron, you get Ag solid, means the amount of Ag is deposited on cathode. Second beaker के अंदर क्या है? MgCl2. so Mg plus 2 electron gives Mg solid, means cathode के ऊपर क्या होगा? Mg deposit होना स्टार्ट हो जाएगा. what is there in third beaker? थर्ड बीकर के अंदर क्या है? AlCl3. तो Al plus 3 electron gives Al solid का, तो कैथोड के ऊपर क्या होगा? Al कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब तीनों को मैं कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज द लॉजिक आफ्टर फर्स्ट लॉ? इफ यू वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर 1 फैराडे. अगर आपको 1 मोल Mg कैथोड पे चाहिए तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एंड इफ आई वांट 1 मोल आई रिक्वायर 3 फैराडे. वंस अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मींस इफ यू वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर 1 फैराडे. यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1 मोल Ag को कैथोड पे कलेक्ट करना है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. 1 मोल Mg जो अगर आपको कैथोड पे कलेक्ट करना है तो आपको 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एंड इफ यू वांट 1 मोल ऑफ Ag एट कैथोड यू रिक्वायर 3 फैराडे. बट यहां पे मैं सीरीज में कितना पास कर रहा हूं? तीनों को 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं. तो हाउ मेनी मोल्स आई कलेक्टेड एट कैथोड? सेम मिलेगा? नो, नेवर. Why? Just because 1 Faraday is sufficient for Ag, so you get 1 mole at cathode in beaker number 1. For beaker number 2, you require 2 electron means 2 Faraday. But मैं पास कितना कर रहा हूँ? 1 Faraday. तो how much I get? I get only 0.5 mole or half. And in beaker number 3, I need a 3 Faraday electricity to get 1 mole of Al. But how much current I pass? I pass only 1 Faraday. So what I get? I get only 0.33 mole. That is 1 by 3 mole. So this is called your second statement. That is Faraday's second law. अब हम फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते, क्लियर हो जाएगा. It states that when the same quantity of electricity is passed through the solution in different substances. हमने नीचे 3 बीकर लिए, तीनों बीकर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस थे बट सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की. The amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their chemical equivalence. तो फर्स्ट बीकर के अंदर कितना कलेक्ट हुआ था? 1 मोल. सेकेंड के अंदर हाफ मोल एंड थर्ड के अंदर 1 by 3 मोल. कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज देयर केमिकल इक्विवेलेंस. हमने केमिकल इक्वेशन बनाए तब पता चला. Ag required 1 electron, Mg required 2 electron, while in case of Al required 3 electron. Means it's depending on their chemical equivalence. For example, when the same quantity of electricity is passed through the solution of 2 different substances A and B, then equation क्या बन जाएगा? mass of A deposited divided by mass of B deposited is equal to equivalent mass of A divided by equivalent mass of B. Always याद रखिए 1 electron means 1 Faraday electricity. We know that. अब
मैं आपको बताऊंगा कि ये 96,500 कैसे आया। We know that the charge on an electron is 1.6021 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore, the charge on 1 mole of equivalent, 1 mole का मतलब होगा Avogadro number. So Avogadro number multiply by this, that is our charge. तो C क्या हो गया 6.022 into 10 to the power 23 multiply by this. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 96487 coulombs per mole. इसी को हमने राउंड ऑफ करके लिया 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 coulombs. So this is all about Faraday's first law, Faraday's second law. Faraday's first law क्या बता रहा है? How much amount of metal collected at cathode, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप कितना करंट पास कर रहे हो. स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं. It states that the amount of substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity following through the electrolyte. That is, M is proportional to Q, M is equal to Z into Q. अब Q क्या है? Q is equal to I into T. ये ऊपर लग रही है, M is equal to Z I T. What is your second law? सेकेंड लॉ के लिए पिक्चोरल डायग्राम फिर से एक बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए मैंने यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल बताए हुए. इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी. तो अगर मुझे Zn का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो Zn का इक्वेशन क्या बनेगा? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड. Zn इज 65.3 डिवाइड बाय 2 32.65. ये इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट. Likewise, in case of copper, what is copper equivalent weight? So that is molecular weight 63.5 divided by 2. So 2 कैसे आया? Cu plus 2 electron gives Cu solid. So here in case you get 31.75 gram. So this is our pictorial diagram. Series में 3 beaker है, तीनों के अंदर अलग अलग electrolyte है. When you pass 1 Faraday electricity for 1 hour, what happen? You get 1 mole of Ag at cathode, you get half mole of Mg at cathode, you get 1/3 mole of Al at cathode, just because this is our chemical equivalence. Statement क्या है? It states that when the same quantity of electricity is passed through the solution of the different substances, the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to that chemical equivalence. So this is all about your Faraday's second law and this is all about your today's session. और ऐसा कर सकते हैं इसी सेशन के अंदर, इसी के बेस के खाली 3 न्यूमेरिकल अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो आज अभी इसी के साथ चेक कर लेते हैं तो फैराडे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Faraday's law. Let's start with the first solved example 3.10. A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes. अंडरलाइन किए, गिवन डेटा 10 मिनट्स मीन्स टाइम दिया हुआ है, विथ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. वंस अगेन आई करंट दिया हुआ है. व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट द कैथोड? वंस अगेन सिंपल न्यूमेरिकल, Q इज इक्वल टू I इंटू T से ये फॉर्मूला है, उससे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो गिवन डेटा क्या है? T इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, I is equal to 1.5 ampere. So first equation, Q is equal to I into T. 1.5 multiplied by 600, you get 900 coulombs. Now equation क्या है? Cu plus 2 electron gives Cu solid. Perfect. So 2 electron means 2 Faraday. So if I pass 2 Faraday electricity, what I get? I get 1 mole. 1 mole का मतलब 63.5 gram of copper available. Round off किया है 63 gram तो भी चलेगा, 63.5 exact लोगे तो भी चलेगा. So when you pass 2 Faraday electricity, I get 63 gram of copper, but I have only 900 coulombs. क्यों? मैं कितना करंट पास कर रहा हूँ, कितने टाइम के लिए, उतना मेरे पास चार्ज है. मैं 600 सेकेंड्स के लिए 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना चार्ज है? 900. So 900 gives how much? So 900 multiplied by 63 divided by 2 into Faraday. Faraday is 96,487. सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर 0.2938 ग्राम. मीन्स कैथोड के ऊपर मुझे कॉपर इतना मिलेगा. क्लियर? वंस अगेन फर्स्ट इक्वेशन Q is equal to I into T.
Next, Cu plus 2 electron gives Cu solid. 2 electron means 2 Faraday electricity. Simplify कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, you get your answer. This is your solved example 3.10. ऐसा एक और न्यूमेरिकल अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज के अंदर. एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3.15. A solution of NiNO3 twice is electrolyzed between this platinum wire or platinum electrode using current of 5 ampere. फर्स्ट गिवन डेटा, कितना करंट पास कर रहा हूं? 5 एम्पियर. फॉर हाउ मेनी मिनट्स? मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा. फॉर 20 मिनट्स. सो 5 एम्पियर 20 मिनट्स. निकल भी +2 है तो Ni +2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni सॉलिड. सो Q = I × T से फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे. I पता है, T पता है. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो फर्स्ट Q = I × T. एम्पियर कितना है? 5 एम्पियर 20 मिनट्स, तो 20 × 60. सो वी गेट 6000 कूलम्स. यहां पे आपका 1 मार्क आ गया. सेकेंड, Ni +2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni सॉलिड. सो 2 इलेक्ट्रॉन = 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? इफ आई पास 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल ऑफ निकल कलेक्टेड एट कैथोड. 1 मोल का मतलब होगा 58.7 ग्राम. So if I pass 2 Faraday electricity, I get 1 mole. But मेरे पास 2 Faraday है? नहीं है. मेरे पास कितना है? 6000 coulomb. So 6000 gives how much? Cross multiplication कीजिए. 6000 multiplied by 58.7 divided by 2 into 96,500. Simplify करोगे, you get 1.825 gram of nickel. Means this many grams of nickel collected at cathode. So this is all about your end exercise 3.15. एक और न्यूमेरिकल है, दैट इज सेकंड लॉ के ऊपर डिपेंडिंग है, दैट इज 3.16. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद 3.16 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 3.16. 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज A, B and C कनेक्टेड सोल्यूशन ऑफ A क्या है? ZnSO4, B क्या है? AgNO3, C क्या है? CuSO4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. स्टेडी करंट, कितना करंट पास कर रहा हूं मैं? तो दैट इज 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं. was passed through the time till 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड एट कैथोड. मींस B सेल के अंदर AgNO3 है, उसके अंदर मैं 1.5 करंट पास कर रहा हूं. कितना टाइम वो नहीं पता है. सबसे पहले आपको टाइम ढूंढना है. बट कितना ग्राम मिलेगा? जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर कलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक मैं करंट पास कर रहा हूं. ये लाइन, ये स्टेटमेंट अच्छे से समझिएगा. हियर इन केस बताया हुआ 1.5 करंट पास थ्रू देम अंटिल, कब तक पास करूंगा? टिल आई गेट 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिट एट कैथोड. हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो? मीन्स आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले T ढूंढना है. एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपोजिटेड. कितना कॉपर एंड जिंक कलेक्ट होगा वो ढूंढना है. तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ भी आ गया, सेकंड लॉ भी आ गया. फर्स्ट लॉ से T ढूंढेंगे एंड सेकंड लॉ क्या है? W1/W2 = E1/E2. उससे हम कॉपर एंड जिंक ढूंढेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3.16. स्टेटमेंट 2 बार पढ़ लीजिए. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो लेट्स स्टार्ट 3.16. कितना करंट पास कर रहा हूं? 1.5. कितना ग्राम मिले तब तक? तो 1.45 सिल्वर मिले तब तक. तो टाइम ढूंढना है T. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा? 108. N = क्या होगा? 1. Why? Just because Ag+ + 1 इलेक्ट्रॉन gives Ag solid. तो फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है? W = Z × IT. सो W = E/NF I × T. तो T को इक्वेशन का फॉर्मूला लीजिए, बाकी सारी वैल्यू पता है. 1.45 96,500 divided by 1.5 into 108. Simplify this, you get 863.73 seconds. ये न्यूमेरिकल 3 मार्क में आएगा. यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट जो पूछा था, हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड टू गेट 1.5 ग्राम ऑफ Ag एट कैथोड इफ आई पास 1.5 एम्पियर करंट. तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. आपको T मिल चुका है, दैट इज 863.75 सेकेंड्स. लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. फॉर कॉपर गिवन डेटा क्या है? W1 इज 1.45. W2 आपको ढूंढना है, मीन्स कितना कॉपर मिलेगा वो ढूंढना है. E1 मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा? 108 बिकॉज डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन होगा. एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे ढूंढोगे? मैंने ऊपर थियरी में समझाया था, दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 31.75 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया आपका 31.75। अब सिंपल इक्वेशन बहुत ही इजी है, पुट ऑल दिस वैल्यू, 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपके पास रेडी पड़ी हुई है, चौथी आपको ढूंढनी है। W1 by W2 is equal to E1 by E2, 1.45 divided by W2 is equal to 108 divided by 31.75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, W2 को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए, यू गेट योर आंसर 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। यू गेट इट एट कैथोड व्हेन यू पास 1.5 एम्पियर करंट। नाउ फॉर जिंक, जिंक के लिए गिवन डेटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, देन यू स्टार्ट द न्यूमेरिकल। फॉर जिंक W1 वंस अगेन सेम 1.45, E1 सेम रहेगा, सिल्वर है 108, W2 आपको ढूंढना है। E2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn क्या हो जाएगा? 65.3 उसका मोलिकुलर वेट है, एंड Zn +2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस 2 से डिवाइड किया मैंने, सो यू गेट 32.65 ग्राम। ये 2 क्या है? +2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड किया। नाउ W1 by W2 is equal to E1 by E2, 1.45 divided by W2 is equal to 108 divided by 32.65। सिंप्लीफाई करोगे, W2 को इक्वेशन का फॉर्म बना लो, व्हाट यू गेट? यू गेट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 32.65 डिवाइड बाय 108, यू गेट 0.438 ग्राम ऑफ Zn। सो 3 मार्क के लिए ये न्यूमेरिकल आएगा। फर्स्ट मार्क फॉर योर Zn, सेकेंड मार्क फॉर योर कॉपर, हाउ मच कॉपर यू गेट इट एट कैथोड, ये यहां पे ढूंढा, एंड फर्स्ट 1 मार्क फॉर योर हाउ मच टाइम यू नीडेड टू गेट, तो ये टाइम के लिए आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैराडे लॉ के ऊपर से सिंपल से 3 न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल थे, सॉल्व एग्जांपल एज वेल एज एंड एक्सरसाइज में। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन, दैट इज फैराडेज फर्स्ट